عمران خان آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں. بجلی کے بل ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ اوکھا پڑ رہا ہے. تحصیل جو 12 ہے، چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ چلتا ہے. یہ جو شہر ہمارے آباد ہیں اسی فصل کی وجہ سے آباد ہیں، اور پچھلے ہمارے لیے کچھ بہتر کیا. آپ پریویس سارا ریکارڈ اٹھائیں، دیکھیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کس ممبر نے، کس چیئرمین نے، کس وائس چیئرمین نے پہلے کیا کام کیا ہے. صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو بھی تازہ کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ مبارکباد پیش کروں گا اس 74ویں سالگرہ کے موقع پر، اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست، اس دفعہ بھی منایا جائے. لیکن محرم اس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارا محکمہ زراعت، ہمارا میونسپل کمیٹیز، ہمارے جو کالجز ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیہ میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے. پچھلے دنوں ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے دھوری ڈیم میں تقریباً 2500 پلانٹ. آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں، تو ہماری آرمی جیسے اپنے شہداء کے جتنے بھی ہوتے ہیں بچے یا ان کی فیملیز کو اچھی طرح نوازا جاتا ہے. ایسی بڑی اچھی حکومت تھی. یہ ساری میں تو کہوں کہ فوج سے کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان. اتوار کی شام 7:05 پر. ناظرین، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آج سے 3 دن پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 3 سالہ کارکردگی جو ہے اس کی چارج شیٹ پیش کی، جس پہ اپوزیشن نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. عام آدمی کا انہوں نے کہا کہ جینا محال کر رکھا ہے. کل جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے ملتان. انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جب 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی تو ان کا کہنا تھا کہ 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ نوکریاں دی جائیں گی اور 50 لاکھ غریب لوگوں کو گھر دیے جائیں گے. تو سراج الحق کا کہنا تھا کہ اب تک 3 سالوں میں کم از کم 30 لاکھ لوگوں کو گھر اور 70 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوکریاں مل جانی چاہیے. جبکہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہ 120 روپے سے اوپر اور شے خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ہم اس ٹائم ایک موجود ہیں ایک اچھی آبادی میں، جہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ، لیکن آج بھی جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل جو پہلے جو تھے وہ 50,000 اگر وہ اس کی سیل تھی، آج وہ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں. غریب آدمی جو ہے اگر اس کے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی تنخواہ میں اور اس کے روزگار میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان کا تجزیہ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. کیا کہیں گے سلیم بھائی کہ اوور آل اس ٹائم جو صورتحال ہے اس حوالے سے 3 سالہ جو کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی، بات یہ ہے کہ کہنا کہنا آپ عوام کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے اتنی شرائطیں رکھ دی ہیں اس میں کہ جس کی 22,000 روپے تنخواہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ 22,000 سے کم اس کی تنخواہ ہو تو وہ 22,000 پے کرے گا. تو سر آپ یہ بتائیں کہ جب وہ اس کی 22,000 سے کم تنخواہ ہوگی تو 22,000 وہ کہاں سے پے کرے گا؟ کیا اپنے بچوں کا گلا دبا دے گا، اپنے گھر والوں کو مار دے گا جان سے؟ یہ تو نہ دینے والی باتیں ہیں. شرائطیں اتنی رکھ دی ہیں. یا تو یہ ہوتا نا کہ جس کی 10,000 روپے آمدنی ہے اس کو کہتے 5,000 آپ دیں گے تو 5,000 آپ اپنے گھر کو چلائیں گے، تب تو بات راہ لگتی تھی. یہ تو ایک ڈرامہ ہے بس، اور کیا ہے. یہ کیا کہیں گے جو اب 3 سالہ کارکردگی ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہے، کیا کہیں گے؟ مہنگائی تو انہوں نے آسمان پہ پہنچا رکھی ہے. غریب آدمی سانس نہیں لے سکتا بالکل بھی. گھی دیکھ لو 320 روپے کلو گھی کلو ہو گیا، جہاں کان ایک تو 60 روپے تھا، 320 روپے کلو. 100 روپے کلو 100 روپے کا آٹا ملتا تھا اور وہ 440 روپے کا آٹا تھیلا مل رہا ہے. غریب آدمی سانس نہیں لے سکتا. غریب آدمی کیا کرے بیچارہ؟ مزدور آدمی 500 روپے کمانے والا 600 روپے اس کے گھر کا خرچہ، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ بتاؤ. پہلے اگر مہنگائی تھی تو اب تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے، مزدور کی دہاڑی میں جو ہے اضافہ ہو چکا ہے.
तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? तनख्वाह तो गवर्नमेंट डालूंगी, मजदूर तो बेचारा वहीं खड़ा, मजदूर तो वहीं खड़ा बेचारा, उसकी 700 रुपये 600 रुपये तनख्वाह, उसकी घर 800 रुपये घर का खर्चा उसका बेचारे का। गवर्नमेंट की तनख्वाह बढ़ रही है, गवर्नमेंट डालोगे मजे, गरीब आदमी तो वैसे पिस रहा है। क्या कहेंगे 3 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान उसने सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कोई काम अच्छा नहीं करा, कोई काम अच्छा नहीं कर। 8,000 का बिल आया अब 8,000 का, जो 3500 का 4,000 का बिल आता था वो 8,000 का बिल आया। ना कोई हम एसी चलाते हैं ना कूलर चलाते हैं, सिर्फ पंखे का बिल हमने 8,000 का भरा है। और घी 300 रुपये किलो ले रहे हैं हम, चीनी 120 रुपये किलो ले रहे हैं। खान साहब से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। कारकर्दगी में जो है वो इस टाइम जो है हमने बहुत सारी इकदाम किए हैं, जिसमें हेल्थ कार्ड का उन्होंने कहा, किसान कार्ड के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। तो इस तरीके से जो है जो बहुत सारी बेहतरी जो है उनका कहना था कि आइंदा 2 साल में मजीद उसके असरात जो है नजर आएंगे। आप ये देखो ना, हेल्थ कार्ड की आप बात कर रहे हो ना, अभी इतने सारे हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछो किसी का हेल्थ कार्ड बने अभी तक? ये तो सिर्फ एक ज़बानी बात है, वो आप भी कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। तो वो तो अल्लाह ताला इमरान खान को भी इजाज़त देता है कि वो बातें कर सकता है। लेकिन जब इमरान खान साहब जब अवाम में आएंगे ना, फिर उनकी कारकर्दगी का पोल खुलेगा कि उन्होंने क्या किया। जी जब क्या इलेक्शन का टाइम आएगा, कारकर्दगी क्या करें, कुछ भी नहीं करे कारकर्दगी, कुछ हो तो लोग गरीब आदमी का हाल पूछो उनको क्या करें बेचारे, उनका हाल दुकानदार भी रो रहे हैं। दुकान कहेंगे भाई 3 साल की जो उनका बददुआएं दे रहे हैं कौम, उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। बिल की तारीख देख लो, रीडिंग की है 10, लेकिन वो कर रहे हैं 25 को या 20 को, बिल भी 25 को आ रहा है, 7-7 हजार 10-10 हजार का बिल आ रहा है। एक मजदूर जो रेडी लगा रहा है वो कहाँ से देगा बिल? ये तो सारी नाकारी और मुशीरों की है और इमरान खान की खुद की है। मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा हमारे सर पर से ये चला जाए अजाब इलाही। बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने क्या करा अभी तक? कुछ नहीं करा, कुछ करा तो बताओ। क्या कहेंगे 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? सर बात ये है, इमरान खान की जैसे उम्मीद थी ना, इसने पहले बयान किया था जो नया पाकिस्तान बनेगा, उस पाकिस्तान के मुताबिक इसने पाकिस्तान बनाया नहीं, उल्टा पाकिस्तान को खराब किया है। अभी जो है ना ये देखो जो है ना 300-400 रुपए किलो घी हो गया है, कहाँ करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए रोजी करेगा, घी लेगा, सौदे लेगा, क्या करेगा? ये इमरान खान को उतारा जाए। वो मियां नवाज शरीफ था और वो जो है ना अच्छे थे, गरीबों के लिए तो अच्छे थे ना, महंगाई तो नहीं थी ना। 3 साल की कारकर्दगी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले अपनी चार्जशीट पेश की, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान ने 3 साल की कारकर्दगी में कोई ऐसी खास चीज पेश नहीं करी कि जिससे मिडिल क्लास तबके को कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। इसमें यह है कि अमीर से अमीरता होता जा रहा है और गरीब पर्सन है जो वो दबा चला जा रहा है महंगाई के में। अभी आप देख लें बिलों की जो हालत है, हमारे रोड की जो हालत है, बिल्कुल नकारा हो चुकी है। तो मैं खान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको वोट दिया है, मेहरबानी करके हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो, हमारी इलाके की ट्रीटमेंट करो। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि इमरान खान के वादे जो है वो सवाए नारों से आगे ना बढ़ सके, क्योंकि 3 साल की कारकर्दगी जो है उन्होंने कहा कि किसी अमीर आदमी के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये सवाए जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई के हवाले से उनका कहना था कि घी की कीमतें 300 रुपये और बिल जो हैं जो 3,000 साढ़े 3,000 आते थे वो अब 8,000 के करीब आते हैं। तो अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। बिजली के बिल है, महंगाई इतनी है कि हमारे बच्चों का पेट ओखा बढ़ रहा है। तहसील जो चौबारा है, चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और जरिया मुआश उसी पे चलता है। ये जो शहर हमारे आबाद हैं उसी फसल की वजह से आबाद हैं और पिछले हमारे लिए कुछ बेहतर किया। आप प्रीवियस सारा रिकॉर्ड उठाएं, देखें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में किस मेंबर ने, किस चेयरमैन ने, किस वाइस चेयरमैन ने
پہلے کیا کام کیا ہے؟ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو بھی تازہ کریں اور ساتھ ساتھ ہم یہ مبارکباد پیش کروں گا اس 74ویں سالگرہ کے موقع پر، اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست، اس دفعہ بھی منایا جائے، لیکن محرم اس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارا محکمہ زراعت، ہمارا میونسپل کمیٹیز، ہمارے جو کالجز ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیا میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے دھوری اڈا میں تقریباً 2500 پلانٹ آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں، تو ہماری آرمی جیسے اپنے شہداء کے جتنے بھی ہوتے ہیں بچے یا ان کی فیملیز کو اچھی طرح نوازا جاتا ہے۔ ایسی بڑی اچھی حکومت تھی، یہ ساری میں تو کہوں کہ فوج سے کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان۔ اتوار کی شام 7:05 پر عمران خان آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں، بجلی کے بل ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ اوکھا بڑھ رہا ہے۔ تحصیل جو چوبارہ ہے، چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ چلتا ہے۔ یہ جو شہر ہمارے آباد ہیں اسی فصل کی وجہ سے آباد ہیں، اور پچھلے ہمارے لیے کچھ بہتر کیا۔ آپ پریویس سارا ریکارڈ اٹھائیں، دیکھیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کس ممبر نے، کس چیئرمین نے، کس وائس چیئرمین نے پہلے کیا کام کیا ہے۔ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو بھی تازہ کریں اور ساتھ ساتھ ہم یہ مبارکباد پیش کروں گا اس 74ویں سالگرہ کے موقع پر، اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں
14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए, लेकिन मुहर्रम उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हमारा महकमा ज़राअत, हमारा म्यूनसिपल कमेटीज़, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं। और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। पिछले दिनों हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर धोरी अड्डा में तकरीबन 2500 प्लांट। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों, तो हमारी आर्मी जैसे अपने शोहदा के जितने भी होते हैं बच्चे या उनकी फैमिलीज को अच्छी तरह नवाजा जाता है। ऐसी बड़ी अच्छी हुकूमत थी। ये सारी, मैं तो कहूँ फौज से कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन दोबारा। मैंने आपको जैसे बताया था अपने इंट्रो में, जो आज से 3 दिन पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साल कारकर्दगी की जो है वो उसके लिए एक चार्जशीट पेश की थी, तो जिसपे हमारी जो अपोजिशन जमातें थी उन सब ने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। तो हम आज निकले मुल्तान की कच्ची आबादियों में, जहाँ पर हमारे जो है मतवसत तबका के जो लोग हैं अब वो रिहाइश पजीर हैं, कि उनसे बात करें कि वो किस हद तक जो हकीकत है। इस टाइम जो मैं मौजूद हूँ वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी का हल्का है, जो कि वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके। इस वक्त मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि महंगाई की क्या सूरत है। अंकल क्या कहेंगे, अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद क्या कोई यहाँ पे सहूलियत नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, और जो चीज़ देखो तो अपने दुकानदारों को अपना अपना रेट है, कोई किसी की सहूलियत नहीं कर रहे, ना किसी का इंटरव्यू होता है यहाँ पे, ना कुछ होता है, समझे ना। और कारोबार में इतनी वो हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है। एलपीजी पे रिक्शा चलाते हैं, ये क्या उसकी कीमतें भी तो कहते कम कर दी गई हैं? एलपीजी पे 160 रुपए किलो है एलपीजी। घर का गुजर बसर हो जाता है या टाइम तो पास करते हैं ना, गुजर बस तो ऐसे ही होता है, ये टाइम पास हो जाता है। हमने जो किसान कार्ड दिए और नौकरियां दी हैं, वो जो घरों की चाबियां दी हैं अपने अपने रिश्तेदारों को दिए, किसी गरीब को नहीं दिए। इधर तो किसी को आगे पानी तक नहीं पूछा अगलों ने, जो गटर बैग मारते हैं इतने पानी, गोड़े गोड़े पानी खड़ा हो जाता है। इधर को तो कोई नहीं आता, शाह महमूद नहीं आता, शाह मनवर कुरैशी नहीं आता, कोई भी नहीं आते। आपने देखा कि बुजुर्गों का कहना था कि एलपीजी की कीमत जो है वो भी कोई 160 रुपए पर केजी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, मेरा रेंट का मकान है, 300 रुपये मेरी दिहाड़ी है, तो मैं मजदूर आदमी को किराए का मेरा मकान है, तो अलग सब 300 रुपये 10 रुपये किलो घी हो गया, चीनी भी रेट है, काफ़ी मतलब है महंगाई है। बराए मेहरबानी करके कोई कराया। और इस इलाके से सबसे पहले झंडा पीटीआई का हमने उठाया था यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले झंडा हमने उठाया था यहाँ से, इस पूरे हल्के में से, हल्का 38 में से हमने झंडा उठाया था पीटीआई का। पीटीआई ने राजी तो कर दिया, झंडा उठाया तो राजी कर दिया, उसकी गलती भोग रहे हैं। कैसे गलती भोग? तो उन्होंने तो कहा 3 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई की है गरीबों के लिए, खास तौर पे महंगाई को कंट्रोल में कर लिया। 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, काफी सारे लोगों को नौकरियां मिल गई, घर की चाबियां दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं। कोई कार्ड नहीं अभी तक आया, कोई हेल्थ कार्ड नहीं आया। जब सारा हालांकि मेरा सारे कागज सिर्फ गवर्नमेंट के पास गए हुए हैं, जगह जगह महकमों में, हेल्थ में भी गए हुए हैं, निश्तर में भी गए हुए हैं, एमडीए चौक में भी गए हुए हैं, तो हर जगह पे मेरा कार्ड गया हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब रिलीफ नहीं दिया। मैं जगह जगह पे गया हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, जो भी ले दे के जो सारा काम हो रहा है। इमरान खान ने यंगस्टर की बात की थी, नौजवानों ने, मेरे आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे नौजवान, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कप्तान के हवाले से, क्या कहेंगे भाईजान 3 साल की कारकर्दगी? इमरान खान साहब ने कुछ काम अच्छे करवाए हैं, तो कुछ काम नहीं करवाए उसने। ये इलाका मखदूम शाह महमूद कुरैशी का है और इस रोड सारा टूटा हुआ है, विजिट करा हुआ है शाह साहब ने,
वो अगर शाह साहब को वोट दे दिया है तो पीटीआई को वोट दिया है, उसके कहने से दिया है, मगर काम नहीं हुए इस इलाके के अंदर। इस दफा नेक्स्ट वोट लेने आएंगे, उसके लिए नहीं होएगा। हम खुद पीटीआई के कारकुन हैं, मगर नहीं देंगे उसको। थैंक यू। क्या कहोगे? बोलो, आप बोलो, बोलो बोलो बोलो। मैं यही कहना चाहूंगा इमरान खान से कि इमरान खान साहब महंगाई पे कंट्रोल करें। जो गरीब आदमी है 500 रुपये पर डे पे काम कर रहा है, वो अपने किराए के मकान और बच्चे के खर्चात कैसे पूरे करेगा? 300 रुपये किलो घी और आटा चीनी घी, वो अपने बच्चों की पढ़ाई या खर्चात कैसे पूरे करेगा? आप तो मजे से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए? वो बेचारी रो नौकरियां क्या गई? नौकरियां 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उन्होंने, वो नौकरियां कहाँ गई? एक नौकरी किसी को नहीं दी इमरान खान ने। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगार हुए पड़े हैं, अवाम बेरोजगार हुई पड़ी है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बज जाते हैं हमें उगराई करते हुए। मंडी का काम है हमारा, यहाँ पर आते हैं तो उनके हालात देखते हैं, वो फ्रूट लेके बैठे होते हैं, पैसे लेने के लिए आते हैं, खुद हम चुपचाप चले जाते हैं। जब कारोबार हालात उनके नहीं है तो हम भी परेशान और गरीब भी बेचारे परेशान। कहाँ जाएंगे गरीब? अंकल क्या कहेंगे 3 साल की? आप तो मुतमईन हो गए इमरान खान की कारकर्दगी? सर मुतमईन तो है, ये बात तो नहीं कि मुतमईन नहीं है, पर महंगाई पे जोर दिया हुआ। मिनट बाद जो अंदर हर रोज रेट पर रेट बढ़ रहे हैं, रेट पर रेट बढ़ रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं है ना। चलो बंदा कम से कम महंगाई पे तो कंट्रोल करे। चलो पॉलिसियां सही हैं, पर महंगाई पे कंट्रोल करे ना। शेख रशीद पिंडी वाले ने कहा था कि डॉलर नीचे आएगा। नवाज शरीफ दौर में आप 170 रुपए का डॉलर है, और कहा 100 रुपए 105 का डॉलर था। रेट इतने बड़े हुए। तो सब क्या कहेंगे ओवरऑल जो इस टाइम जो सूरत हाल है महंगाई की, इस हवाले से? ये महंगाई तो इतनी है कि अब आप चीनी से अंदाज़ा लगा लें कि जो 30 रुपए किलो थी अब वो 105 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। और जो आटा था जो 6 रुपए किलो था आज वो 70-75 रुपए किलो पे आ गया है। घी जो था 60 रुपए किलो था आज वो 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। तो महंगाई का तो ये आलम है कि महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ी हुई है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करें, तो अगर महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो ये हीरो है। एक बुजुर्ग मेरे सामने पीछे बैक साइड पे देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उन्होंने तजर्बे। अंकल क्या कहेंगे 3 साल की जो इस टाइम हुकूमत की जो कारकर्दगी है? उनका कहना है कि महंगाई में काफ़ी हद तक कमी लाई गई है, हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कमी तो नहीं आई जी, बल्कि गरीब आदमी फिस रहा है। बिल इतने आ रहे हैं, हर चीज, घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, कहाँ से गरीब आदमी खाए? समझ लगी है। ये हमारे तो यही मसाइल है, और तो क्या कहेंगे ओवरऑल जो 3 साल की जो कारकर्दगी है उस हवाले से? आगे 2 साल रह गए हुकूमत, कोई समझ नहीं हमें तो आ रही। समझ लगी, हम तो वही मेहनत कर रहे हैं, कोई वो बेनिफिट नहीं है जो पहले था। समझ लगी, जो पहले हुकूमत में था वो नहीं है बेनिफिट। आपने देखा कि मजदूर की जो सूरत हाल है वो जो आज से 3 साल पहले थी वो आज भी वहीं पर मौजूद है। उनका कहना है, जितने भी हमने तकरीबन दोस्तों से बात की, कि महंगाई जो है वो यकीनन के आसमान को छू रही है। शेख खुर्दनोश की कीमतों की बात करें, पेट्रोल की बात करें, या रूटीन की जो इस टाइम जो गरीब आदमी के इस्तेमाल की, जैसे अभी हमें एक रिक्शा ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि एलपीजी जो कीमत जो है वो 160 रुपए के करीब पर केजी है। सवारी जो है वो उसके पैसे नहीं भरती, तो घर का चूल्हा जलाना यकीनन मुश्किल हुआ है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं बारी बारी के। क्या कहेंगे 3 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? भाईजान क्या कहेंगे ओवरऑल जो 3 साल गुजर चुके हैं उस हवाले? बहुत महंगाई के गुजर चुके हैं 3 साल। जहाँ चाय 15 रुपए की थी अब 40 रुपए की होगी, घी 340 रुपए हो गया। यही आवाम ने खाना है, घी, आटा, चीनी। अब चीनी लेने जाओ तो पहले स्टोर में लाइन लगती है, फिर जाकर शनाख्ती कार्ड जमा होता है, फिर जाकर चीनी मिलती है। वो भी चीनी मिलेगी तो 75 या 90 रुपए, 80 रुपए किलो तो स्टोर में चीनी है, बाहर से लो 110 रुपए। अवाम ने यही खाना है, महंगाई इतनी कर रखी है बेनतहा। बच्चों के गले घोटने को दिल करता है लेकिन नहीं घोटे जाते क्योंकि वो हमारा पेशाब है। अब क्या करे बंदा, कहाँ जाए? ये जो आपने बताया कि चाय 40 रुपए की होगी, रश फिर वहीं पे है। जो इमरान खान कह रहे हैं कि जो 1 लाख मोटरसाइकिल बिकती थी अब वो 5 लाख बिक रही है। गाड़ियां जो हैं वो लाख, जो 2 लाख रुपए की गाड़ियां निकल रही थी वो अब 5 लाख गाड़ियां बिक रही हैं। अब जैसे रोन का टिक्का एक लगा लेता बंदा, अब चाय का भी ये नशा ऐसा ही है, नहीं पियेंगे तो सुकून नहीं आएगा, घर जाएंगे तो लड़ाई होगी। दिमाग को सुकून देने के लिए चाय पीते हैं लोग। अगर घर बनवाएंगे
पाइया दूध ले में या आधा किलो ले में 50 का दूध, 20 की चीनी, 10 की पत्ती, फिर बनेगी 80 रुपए में। अब यहाँ 40 की 2 80 रुपए की बनती है 3, चलो भाई 2 चाय 80 रुपए की। क्या कहेंगे? अब हम जो मौजूद हैं हल्के में, शाह महमूद कुरैशी के हल्के में मौजूद हैं। यहाँ अगर तरक्याती कामों के हवाले से बात करूँ तो यहाँ फाटक का भी एक दरीना मसला है, रोड्स की जो अंदरून की जो सूरत हाल है, यहाँ की जो कच्ची आबादी है, उस हवाले से क्या कहेंगे? असल में शाह महमूद ने भी पहले आए ना शुरू में बड़ा फायदा दिया, हमारे कब्रिस्तान के लिए भी हर चीज करा, वो कोई गलत नहीं करा उसने। लेकिन अब कोई वो नहीं हो रहा। एक तो फाटक ने बहुत तंग करा होया, वो बना इंटर पास बनाएंगे, अभी तक नहीं बना। अवाम बड़ी परेशान है, बच्चे स्कूल के लिए तंग होते हैं। अब देखो अब दोबारा इलेक्शन होना है, क्या बनेगा देखो। नहीं बनेगा तो क्या, वोट तो डालने हैं आप लोगों ने, बनना क्या है? जब वोट डालेंगे आप तो वो बनेगी हुकूमत, तो वोट डाले तो हुकूमत बनी। वोट डालना बेकार है, अब तो कोई मुश्किल ही डालेगा जो डालेगा, जिसको पैसे लगेंगे वो डालेगा, जो खाएगा वो डालेगा। अपने काम से टाइम नहीं मिलेगा, बच्चे पाले वोट डालने जावे। आपने लोगों की बात सुनी कि मायूस हैं। हमारे जितने भी दोस्तों से बात हुई महंगाई के हवाले से, मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। हमने मुख्तलिफ जो है रिक्शा ड्राइवर से लेके, क्योंकि एक कच्ची आबादी में मौजूद हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान के जो नाइब वजीर आजम का ओहदा है वजीर खारजा, उनके हल्के में मुल्तान में मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाईजान, 3 साल हो चुके हैं हुकूमत की कारकर्दगी। सर सिर्फ जो है ना आटा और चीनी का मसला, अगर ये चीज सस्ती हो जाए ना तो इमरान खान हीरो बन जाए, बस यही है। ठीक है, पेट्रोल भी महंगा, ये जरूरत की यही। बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं? नहीं जा रहे, बिजली के बिल भी कह रहे हैं ना कि चीनी का और वो जो आटे का मसला हल हो जाए तो तकरीबन ठीक है। नहीं, सब चीजें मकसद है, जो जरूरत की चीज है ना वो नहीं सही हो रही, बस यही गरीब के लिए यही जरूरी है, यही जरूरी है। आप 3 साल की जो कारकर्दगी है उस हवाले से? कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है बढ़ रहा काम, नीचे नहीं आ रहा। पेट्रोल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, गरीब के लिए तो यही जरूरी है। लोगों के जहन में तो होगा कि ये शाह महमूद का हल्का है, वजीर खारजा का हल्का है, यहाँ तो दूध की नहरें बह रही होंगी, तो आप मायूस इतने क्या वजह, बुनियादी वजह क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फाटक का देरीना मसला था, यहाँ की गलियां जो हैं वो मैंने देखी कि वो भी जो है वो पुख्ता गलियां नहीं हैं, वहाँ पर भी रस्ते टूटी हुई हैं, तो क्या कहेंगे? सब तंग है, कुछ भी सहूलत नहीं है। शाह महमूद का इलाका है, सहूलत तो कुछ भी नहीं है ना। अभी सुना था कि जून में जुलाई में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अभी तो लॉलीपॉप दिया हुआ है, खाली काम नहीं शुरू हो रहा है। यहाँ इतना मसला है कि जब एक गाड़ी गुजरती है दूसरी का फिर और हारन हो जाता है, वो दूसरी का इंतजार करने तीसरी का और हारन हो जाता है। यहाँ पौना घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अगर यहाँ खुदा न खास्ता किसी को दिल का अटैक हो जाए वो तो यहीं मर जाएगा। जो कोई बीमार है वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि फाटक खुलेगी तो आगे लेके जाएंगे ना एम्बुलेंस गुजर सकती है यहाँ से, ना मोटरसाइकिल पे लेके जा सकता है। तो जब तक ये फ्लाई ओवर या अंडरपास नहीं बनेगा तो लोगों को सहूलत नहीं होगी। ये मेन चीज है और ये बनानी चाहिए और ये जरूरी है। ये शाह महमूद का इलाका है, ये कोई सहूलत नहीं है। तो वोट डाले तो आप बात नहीं करते उनसे? कहाँ मिलते हैं बड़े लोग, कहाँ मिलते हैं गरीब आदमी से। नाज़रीन, आखिर में इन्हीं अल्फाजों के साथ इख्तिताम चाहूँगा कि हमने जितनी भी लोगों से बात की वो आपके सामने हैं। इस टाइम मुल्तान में मैं मौजूद था, मुल्तान शाह महमूद का हल्का, जिसमें कच्ची आबादी में एक मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है। उनका यही कहना था कि 3 साल की कारकर्दगी तो हुकूमत ने यकीनन पेश की। किसान कार्ड के हवाले से बात की गई, हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की गई, अशाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने की बात की गई, लेकिन गरीब की जो मायूसी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना गिरदो नवाज दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।